गुड मॉर्निंग। टुडेज टॉपिक उसी का कंटिन्यूएशन है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में इसका जो एनाटॉमी है उस एनाटॉमी को लेकर आगे चल रहे हैं। इससे पहले आई हैव मेंशन्ड अबाउट द टिश्यू सिस्टम। सो टिश्यूज, what type of tissues there, definition of tissues, and I have also mentioned regarding the type of tissues which are present in the anatomy of plant body. And I have mentioned in my last lecture regarding that there are two type of tissues present. The first, the tissues which is able to divide and they have tremendous power of division, that is known as meristematic tissues, and I have told you their development and origin and their location and what their role regarding the plant organization. And after that I have also said during that my lecture that the tissues are generally two types. I have mentioned that one is the meristematic tissues which have enormous power of division, which have potential to division, which is undifferentiated cells and which are able to divide continuously and which forms the growth of the plant. This thing I have mentioned about the meristematic tissues, and I have given you some characteristic features of the meristematic tissues. Today is the topic that is the second part of the tissue system. जैसा कि मैंने बोला था कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तो पहले एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पाया गया, उसने ग्रोथ किया और ग्रोथ करके वो उसका लोकेशन जो है ऊपर पहुंच गया। लेकिन जो सेल्स बच गया, मतलब कि जो सेल्स रह गया, एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू द परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज के बारे में आज एक बात हम कहेंगे कि द टिश्यूज विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम and they lost their power of division and become permanent tissue. This permanent tissue is result from the meristematic tissue. As I have said, the permanent tissue has lost their ability to division, but during my lecture when I will start about the secondary growth of plant and of plant generally root and stem, I will say that here there is a de-differentiation can also be occurred. कहीं पर differentiation होगा वो भी उसके अंदर जो है that is able to form a tendency to divide, उसमें भी division power develop हो जाती है permanent tissue में during the lecture when I will start secondary growth of stem and plant. तो आज जो परमानेंट टिश्यू का मतलब ये कहा गया है कि परमानेंट टिश्यूज आर, जैसे कि नाम इंडिकेट करता है, परमानेंट हो गया है एंड दे आर फॉर्म फ्रॉम द प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनते हैं। और इसके बनने के बाद वो टिश्यूज होते हैं फंक्शनली स्ट्रक्चरली दे लॉस्ट देयर पावर ऑफ डिवीजन and that become a permanent type of tissue, and that is called as permanent tissue. Like that, some instances there regarding the permanent tissue. ये है क्या? That is you can say there are three types, and that is known as first I want to say here regarding the permanent tissues are two types. I want to say here दो टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। एक टिश्यूज होते हैं that is known as simple permanent tissues and other tissue is known as complex permanent tissues. दो टाइप के टिश्यूज के फॉर्मेशन होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड अदर इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इसमें है क्या एक्चुअली परमानेंट टिश्यू में, नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। व्हाट द लेक्चर यू पीपल हियरिंग, सुन रहे हैं, इट इज सफिशिएंट ऑल ऑफ यू दैट आई हैव सेड द परमानेंट टिश्यू इज फॉर्म फ्रॉम द primary and secondary meristem and they are structurally and functionally they are permanent. They are two type, permanent tissues are two type. One is that is simple permanent tissues and other is a complex permanent tissues. Regarding the simple permanent tissue, if I want to say here, there are three type of cells which are very important, and that is known as parenchyma, sclerenchyma, collenchyma. These are the cells which are come under the primary so the simple permanent tissues, and other that is the complex permanent tissue.
complex permanent tissue that constitute, that has used to be occur generally in the, you can say about the tracheids, about the xylem and phloem. जहां तक xylem और phloem की बात होती है, and they are come under the complex permanent tissues, and they have what they have, and they have two type of complex tissues, that is I have just said xylem and phloem, and both have different functions. You know very well about all that, need not to repeat it again. उसका अपना दोनों का अलग अलग काम होता है. Xylem is a complex because it has consist of 4 different cells and 4 different type of cells that constitute the xylem, and phloem is also consist of 4 different type of cells. As you know very well about that, xylem is a main conducting tissue of the water, conducting water, minerals and nitrogen substance. Nitrogen and water minerals, they are conducted by the xylem, and the conduction can be take place through the xylem, and that xylem consists of 4 different type of cells. What is that? That is tracheid, that is vessels. Vessels is also known as tracheae, xylem parenchyma and xylem fibers. These 4 different cells constitute the xylem, and these xylem come under the, that I mentioned, complex permanent tissues. Other part of the complex permanent tissue, that is phloem, that conduct the food, which are that conduct biodirectionally. First you have to you should know about that. But the xylem conduct unidirectionally, and the phloem conduct biodirectionally. Their food product which are synthesized in the leaf. After synthesizing food, the food is transported from leaves to roots, and from roots to the different parts of the body. So that can act as a biodirectionally. So the functions of the phloem is conducting the food product which are manufactured in the plant through the photosynthesis. तो इस तरह से जो phloem जो है, ये भी 4 डिफरेंट जो है उसके फॉर्मेशन में सेल्स, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो है टिश्यूज के जो है वो फॉर्मेशन करते हैं फ्लोएम में. जैसे CO ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स एंड phloem parenchyma and phloem fibers. These are the 4 different tissues which are present in the phloem, and the 4 different tissues which are present in the xylem. So these are the part of complex permanent tissues. We will discuss later on. First we will discuss regarding the first about the, that is the simple permanent tissues. And simple permanent tissue is, as said, they have 3 groups, and that is parenchyma, parenchyma and sclerenchyma. All the tissues have different constituent. All the tissues, all means all the 3 tissues of the simple parenchyma is consist of different structurally, functionally, same is parenchyma and same is sclerenchyma. इन तीनों टिश्यू में जिनका जो फॉर्मेशन जो होता है वो भी डिफरेंट होता है, इनका मॉर्फोलॉजिकल फीचर डिफरेंट होता है, इनका फंक्शंस भी डिफरेंट होता है. फॉर दैट दे हैव कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप. So first I want to say this is the parenchyma, parenchyma and sclerenchyma. First we will discuss about the parenchyma. This tissues is generally occur in the large part of the plant. पेरेनकाइमा जो होते हैं प्लांट के लार्ज पार्ट में पाए जाते हैं. यू कैन से इट इज प्रेजेंट इन द रूट्स, इट इज प्रेजेंट इन द स्टेम, इट इज प्रेजेंट इन द फ्रूट, इट इज प्रेजेंट इन द ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक द ब्रांचेस. तो ये हर एक पार्ट में सीड्स एंड सीड्स में भी होते हैं. जैसे कि अब यू नो कि जो न्यूक्लियस जो होते हैं, यू हैव फाइंड आउट दैट इज यू कैन फाइंड आउट अबाउट द इन ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टिश्यू यू कैन फाइंड द पेरेनकाइमा. यहाँ पर कहने मतलब ये कि पेरेनकाइमा टिश्यू जो होते हैं प्लांट के सभी ऑर्गन में पाए जाते हैं. मतलब दैट इज दैट अकर मोस्ट प्रोबेबली दैट अकर इज मोस्टली इन एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी. देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? ये पेरेनकाइमा का जो स्ट्रक्चर होता है, देयर वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज की इसकी वॉल बनी होती है.
and they are living cells. And they are living cells. What do you mean by that? It means that each parenchyma cell possesses cytoplasm and nucleus, and that shows a protoplasm. And due to protoplasm that is present in the each cells of the parenchyma, that is why it is known as living cells. And its boundary, its wall is made up of cellulose. And the most important feature is that the parenchyma has intercellular space is present there. मतलब कि दो सेल्स के बीच में या ग्रुप ऑफ सेल्स में छोटे छोटे स्पेस पाए जाते हैं, और उस स्पेस को क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज इंटरसेलुलर स्पेस. एज यू हैव, आप पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, जब आपको हम टिश्यू सिस्टम के बारे में बताएंगे, जब टिश्यू सिस्टम बताएंगे तो यू कैन आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो स्टोमेटा भी होता है, दे आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मल सेल्स एंड सराउंडेड बाय द सब्सिडरी सेल्स. तो वो भी एक पेरेन्काइमल टिश्यू होते हैं. उसके अंदर क्या होता है? जब स्टोमेटा ओपन होता है, जब स्टोमेटा खुलता है, तो वाटर जो होते हैं, एक ये वाटर जो होते हैं अपने सेल से निकलकर इंटरसेलुलर स्पेस में आते हैं. हैव यू हर्ड द नेम ऑफ माइमोसा पुडिका? Mimosa pudica is the name of the plant that is in English that is known as touch-me-not, and हिंदी में इसको बोलते हैं छुई मुई. एंड जैसे आप उसको छुएंगे एकदम they can become withered. Why they have become withered? What is the physiology of that plant says? इसकी फिजियोलॉजी में भी बहुत बड़ा रोल होता है पेरेन्काइमा का. तो व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेन्काइमा इन दैट टिश्यू? ऐसा होता है कि जैसे उसको टच करेंगे तो जो टर्जिडिटी प्रोवाइड होती है, जो बहुत फ्लैशिंग, जो बहुत मतलब कि इरेक्ट प्लांट इरेक्शन स्टेट में रहते हैं जो लीफ, दे बिकम आफ्टर टचिंग दे बिकम विदर्ड. व्हाट हैज हैपेंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस? उसमें क्या होता है कि जो इनके पेरेन्काइमा में जो वाटर्स होते हैं, दे वाटर्स कैन गोज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस दैट वाइज विदर्ड. तो दैट इज द रोल ऑफ द आल्सो द पेरेन्काइमा सेल्स टिश्यू प्लेस. मेरा यहाँ पर कहने मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर इसलिए इस वर्ड को मैंने यूज किया माइमोसा पुडिका के बारे में कि पेरेन्काइमा सेल्स के जो चारों तरफ जो होते हैं, मतलब इस ग्रुप पेरेन्काइमा सेल्स के मतलब कि इंटरसेलुलर स्पेस कह रहे हैं, नॉट इनसाइड द सेल, बिटवीन द सेल स्पेस पाए जाते हैं. तो इंटरसेलुलर स्पेस इज आल्सो प्रेजेंट देयर एंड इट हैज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ दैट प्लांट. तो ये सब कंडीशन मैंने बताया. इसका काम क्या होता है पेरेन्काइमा का? जनरली ये स्टोरेज का काम करते हैं. स्टोरेज, आप जितने भी फ्रूट्स खाते हैं, ऑल द फ्रूट्स हैव मेड अप ऑफ पेरेन्काइमल टिश्यू बिकॉज दे हैव अ हायर पावर टेंडेंसी ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी. तो स्टोरेज कैपेसिटी जो होता है पेरेन्काइमा में पाया जाता है. फ्रूट्स में हो गया, यू कैन गेट इन द लीफ हो गया, यू कैन गेट इन द आफ्टर द कॉर्टेक्स रीजन में देखेंगे, कॉर्टेक्स भी कितने होते हैं वो पेरेन्काइमा के बने होते हैं. And you can also so pith is also made up of the, when you go to the anatomy of the internal anatomy of the roots and stems, you can find out the position of pith. Pith is also made up of parenchyma, and the role of parenchyma is the storage of food. Second role क्या है इसका? Second role इसका क्या है कि because you know these have a tendency to photosynthesize, because they have a chloroplast is present there, and this parenchyma is the term parenchyma is changed according to the plastids which are present there. That is known as chloroenchyma. So why it is called chloroenchyma? It is called chloroenchyma because the E cells of the parenchyma possess chloroplast, and that parenchyma converted into the chloroenchyma due to the presence of plastid, green color plastid होने से chloroenchyma हो गया, and they act as a photosynthesizing activity. अब यहाँ पर क्या करता है? स्टोरेज का काम ना करके अब वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है. तो they can also photosynthesize, and what the food is manufactured, and that has been also stored in the parenchyma. They have also role in secretion. Secretion भी parenchyma करते हैं. Tannin हो गया, resins हो गया, साइजोजेनस वगैरह आप लोग पढ़ेंगे, तो वो सब जो होते हैं they are roles in the secretion also. And they have also parenchyma is there. Why it is called parenchyma? When air is present in the parenchyma, the terms become parenchyma. What is the role of parenchyma? The role of parenchyma is to provide buoyancy of the plant. प्लांट जो होता है, आपने देखा होगा कि प्लांट जो होते हैं, कुछ प्लांट दे आर फ्लोट करते हैं. जैसे एक देखा है इकॉर्निया प्लांट जो है, उसके अंदर देखेंगे स्पॉन्जी होता है. स्पॉन्जी होने का दे आर फ्लोटिंग ऑन द water. Why they are floating on the water? Because they possess air. Where air is present? Air is present in the parenchyma, and that is why it is known as parenchyma. तो ये चीज थोड़ा सा मैंने बताया है, तो इसको आपका जो बुकलेट प्रोवाइड की जाए उससे पढ़िएगा.
during my lecture, what I am delivering my lecture, it is very important to you. You get through, and what I have बोर्ड पे क्या लिखना उस पर ध्यान दीजिएगा. And after that you try to solve the question. And regarding that, if any difficulties has come in your mind during the looking my lecture and during the studying of your own self and what the term you have got it, you can तुरंत हमको फोन करिएगा. We can आपको तुरंत मैं जवाब दूंगा उसका. ओके, तो इस तरह से मैंने अभी बताया आपको पेरेंट कैमा के बारे में. नाउ वी आर टेलिंग यू अबाउट द सेकंड टिश्यूज ऑफ द सिंपल पेरेंट कैमा, दैट इज नोन एज कोलेनकाइमा. तो अभी तक सब एक मिनट रुकेगा. अभी मैंने जो पेरेंट कैमा का जो काम बताया था, पेरेंट कैमा काम में मैंने क्या बताया था? दे हैव रोल इन द स्टोरेज, दे हैव रोल इन द सिक्रीशन, एंड सिक्रीशन था, स्टोरेज था, एंड दे हैव रोल इन द फोटोसिंथेसाइजिंग. ठीक है ना. तो ये सब रोल मैंने क्या बताए थे? पेरेंट कैमा के बताए थे. एंड वी हैव आल्सो टोल्ड यू रिगार्डिंग द पेरेंट कैमा आल्सो प्लेस ऑफ सम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द प्लांट बॉडी. अब जो दूसरा टिश्यू ले रहा हूं वो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत आता है, एंड दैट टिश्यू इज नोन एज कोलेनकाइमा. कोलेनकाइमा जो होता है, व्हाट इज कोलेनकाइमा? इट इज अ प्लांट. अभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जब जब हवा बहुत तेज चलता है, व्हेन एयर इज ब्लोइंग वेरी फास्ट, व्हेन यू कैन से अबाउट दैट, बहुत तेज हवा चलती है, द प्लांट इज रोलिंग हेयर एंड देयर, ऐसे ऐसे घूमते हैं, हेयर घूमते हैं. अगर इफ द कोलेनकाइमा इज नॉट प्रेजेंट in that plant, the due to blow of the air, the tree can fall down, the branch can break down, हो सकता है, टूट सकता है. तो what it shows that the tissues कोलेनकाइमा which provide the flexibility of the plant body. ध्यान दीजिएगा, इन तीनों टिश्यू में, if I am talking about the parenchyma, if I am talking about the कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, इन तीनों टिश्यू में अगर हम बात करते हैं तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कोलेनकाइमा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कोलेनकाइमा का मतलब हो गया, सबसे पहले एक पॉइंट याद करिएगा, ये टिश्यूज होता है, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट बॉडी. पेरेंकाइमा क्या सबसे बड़ा काम करता है? दे प्रोवाइड द स्टोरेज ऑफ द वुड प्रोडक्ट. स्क्लेरेनकाइमा काम क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा काम ये होता है कि दे प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, हार्डनेस. ये भी कोलेनकाइमा भी रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन उतनी रिजिडिटी इसके अंदर नहीं होती है. देयर इज सम एक्सटेंट, वो रिजिडिटी के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है कोलेनकाइमा में. तो यू गॉट दिस पॉइंट, माय पॉइंट. तो मेरा पहला कहने का मतलब ये है कि द कोलेनकाइमा टिश्यू आर द टिश्यूज विच प्रोवाइड flexibility to the plant, and due to that flexibility the plant cannot be break down during the high pressure of the air. तो कोलेनकाइमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. एंड द व्हाट टिश्यूज देयर, अभी मैंने कहा था कि जो पेरेंकाइमा का जो वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? आई हैव टोल्ड यू द वॉल ऑफ द पेरेंकाइमा इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. सो व्हाट इज द टिश्यू व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द कोलेनकाइमा? कोलेनकाइमा का टिश्यूज होते हैं, उसके अंदर जो होता है सेलुलोज भी होता है, हेमीसेलुलोज भी होता है, इवन पैक्टिन भी होता है. दीज थ्री केमिकल सब्सटेंस, यू कैन से दीज थ्री आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. These are the complex carbohydrates which are present in the formation of कोलेनकाइमा. क्या है वो? सेलुलोज है, कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज. हेमीसेलुलोज ये भी कार्बोहाइड्रेट है, पैक्टिन ये भी कार्बोहाइड्रेट है. These all are complex carbohydrates which constitute the wall of the कोलेनकाइमा. Second most important features of कोलेनकाइमा is that in the corner of the कोलेनकाइमा you can get it. देयर थिकनेस. हर एक कॉर्नर पे कोलेनकाइमा टिश्यूज के हर एक कॉर्नर पे थिकनेस पाया जाता है. वो थिकनेस जो होता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ हेमीसेलुलोज, सेलुलोज एंड पैक्टिन के कारण होता है. एंड इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कोलेनकाइमा. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कोलेनकाइमा. जैसा कि मैंने कहा था कि पेरेंकाइमा में बिटवीन द सेल देयर इज ए इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट. इंटरसेलुलर स्पेस कह रहा हूं, इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं कह रहा हूं. अगर हमने इंट्रासेलुलर स्पेस कह दिया तो विद इन द सेल की बात हो जाएगी. विद इन द सेल की बात नहीं कर रहे हैं. पेरेंकाइमा में जो अगर स्पेस पाया जाता है, जो इंटरसेलुलर जो स्पेस पाया जाता है वो स्पेस होता है
सेल के अंदर ना पाकर 2 या 4 सेल जो होते हैं उन सेल के बीच में पाया था, उन सेल के बीच में मतलब आउटसाइड द सेल पाया था, आउटसाइड एंड बिटवीन द सेल्स पाया था, उसको बोलते हैं इंटर, INTER, इंटरसेलुलर स्पेस। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रासेलुलर स्पेस की बात करेंगे तो इंट्रासेलुलर स्पेस का मतलब ये हो गया कि सेल्स के अंदर स्पेस पाया जाना। तो आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग, आई एम सेइंग इंटरसेलुलर स्पेस व्हिच आर प्रेजेंट इन द पेरेन्काइमा, बट द इंट्रासेलुलर स्पेस इज एब्सेंट इन द कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। और क्या इसके अंदर ये मोनोकॉटिलिडन्स प्लांट में एब्सेंट होते हैं, कौन? कोलेनकाइमा। लेकिन डाइकोटिलस प्लांट में बिलो द एपिडर्मिस दे आर प्रेजेंट 3 या 4 लेयर पाए जाते हैं। डाइकोटिलस प्लांट में below the epidermis they are present in 3 or 4 layer and that is the features of colenenchyma. Functions क्या है इसका? I have given you functions. इसका क्या है? It provide, first the function is it provide flexibility along with mechanical strength to that plant. This is the colenenchyma. Now third issue regarding the permanent simple permanent tissue का I have discussed. Third topic, third tissue you can say about that is sclerenchyma. अभी देखिए मैंने क्या बताया, पेरेन्काइमा बताया, लेकिन एक फीचर मैंने इसके अंदर नहीं बताया कोलेनकाइमा में, इट इज आल्सो अ लिविंग टिश्यूज। ज्यादातर ये भी लिविंग होते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड लिविंग टिश्यू? बिकॉज दे आर न्यूक्लियस एंड प्रोटोप्लास्ट इज प्रेजेंट, सॉरी न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म is present and that constitutes protoplasm. When protoplasm is present, that is also come under the living cells. कोलेनकाइमा भी लिविंग सेल्स होते हैं। थर्ड टिश्यू जो बता रहा हूं जिसका नाम है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं, ये होते हैं दे आर डेड सेल्स। पहली बात है कि दे आर डेड, दे आर हाईली लिग्निफाइड, दे हैव वेरी फ्यू ल्यूमेन इज देयर, दे आर पॉइंटेड, सिलेंड्रिकल्स, इलोंगेटेड सब होते हैं। लेकिन इसका जो एक काम बताना चाह रहे थे इसके अंदर कि इसका एक बहुत बड़ा काम होता है स्क्लेरेनकाइमा का, ये दे प्रोवाइड मैकेनिकल रिजिडिटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट। दे डू नॉट हैव ए प्रोटोप्लास्ट, दैट इज व्हाई स्क्लेरेनकाइमा इज कैटेगराइज्ड इनटू द डेड सेल्स। They are elongated, pointed, and they have a lumen. Their lumen and their lumen is there. Lumen is a cavity, you can say. But in some sclerenchymatous, the lumen is absent. उसमें lumens नहीं होता, नहीं हो. Lumens is very, you can say very little bit of lumen is present. That is known as sclerites. So आप ये कह सकते हैं कि sclerenchyma is further divided into two groups.